Good evening, ladies and gentlemen. On this Saturday evening, today is a very interesting topic, no? And on behalf of Ahmedabad Management Association, I welcome you all for this talk on the awareness about solutions for insurance complaints. We have our honorable insurance ombudsman, Mr. C. Vikas Rao, with us. I welcome him on behalf of AMA. And we have another speaker, Mr. Hasmukh Gohil. He is the secretary in the office of the Insurance Ombudsman, Ahmedabad. I welcome him. Friends, I will give a brief introduction of Mr. C. Vikas Rao. Mr. Sri Vikas Rao, a remarkable individual who has dedicated his life to the insurance industry and has made significant contributions throughout his illustrious career. Please allow me to introduce Mr. C. Vikas Rao, the esteemed insurance ombudsman of Ahmedabad. He has joined Ahmedabad on 10th October 2022. He possesses an impressive educational background, having completed his BSc Honours and MBA. Furthermore, he is recognized as a Fellow of the Insurance Institute FII, a testament to his expertise and deep understanding of the insurance sector. With an outstanding work experience spanning over 37 years, primarily in the renowned Life Insurance Corporation of India (LIC), Sri C. Vikas Rao has amassed a wealth of knowledge and wisdom. For 29 years, he excelled in various marketing roles with LIC, demonstrating his exceptional skills in this domain. He has served as a marketing manager, senior divisional manager of 4 divisions in Mumbai, and regional manager marketing in Karnataka. Throughout his career, Sri C. Vikas Rao has held prestigious positions including Executive Director of the P&GS Department and CLIA Department. He has also served as a Zonal Manager in charge of the Eastern Central Zone in Patna and the West Zone of Mumbai. Additionally, he has been appointed as a nominee director in 2 esteemed companies, DCM Sriram Industries Limited in Delhi and Axel Industries Limited in Mumbai. Beyond his professional achievements, Sri C. Vikas Rao possesses a diverse range of hobbies and interests. He finds solace in singing, cherishes the beauty of music, and exhibits an avid passion for nature and wildlife. Let me introduce Mr. H.S. Goyal. He is a distinguished professional with over 40 years of experience in the insurance industry. He has excelled in various roles, including 18 years in life insurance marketing, 9 years as a branch head, and 6 years as a manager sales. Mr. Gohil's expertise extends to insurance claims, policy, servicing, and claim investigation, ensuring fair and efficient process for policyholders. With his extensive knowledge and leadership skills, Mr. Goyal is a true industry stalwart. Please join me in welcoming him. He shares his insights and expertise today. Now I hand over to Sri Vikas Rao. Please go ahead, sir. So good evening, friends, and Mr. Giriraj Dave,
my colleague Mr. Gohil, and other colleagues from my office, and my dear friends. It's indeed an honor to be here today and address you all on the awareness about the solution for insurance complaints. At the outset, I thank AMA, uh, Mr. Unmesh Dikshit, Executive Director, and Mr. Giriraj Dave and his team for giving me this opportunity of being here today. I also thank you for your kind introduction. Thank you, Mr. Dave. It's nice to be in a management center. I was earlier in Birla Institute of Technology, Mesra, doing my MBA. I couldn't complete that. Later, I did MBA from another place, Open University. So nice to be in an environment of education, of learning, of knowledge. So it's really nice to be here today. Friends, today I would be talking of the insurance solutions. A solution for insurance complaints. I am sure you must have had some issue in your life, in your career, or in your at your place regarding servicing of some company or some product of some company. You are not happy with the services. So, how did you solve that? How did you solve your problem? I am sure you must have taken up certain issues which must have really annoyed you, or you have been angry about. Yeah, I too had such experiences. The first time I ever complained against some product, that was I can share with you, though a little personal. That was the rinse soap. Rinse soap which damaged my 2-3 branded shirts because I used it on the collar and it left a blue mark, and despite my best efforts it didn't go. I was very annoyed. I said, what to do now? So I complained to HUL, Hindustan Unilever, and I'm very happy with their experience. Their chap came, collected the shirts and got back after some days. They did the testing and all. I gave the soap also, soap bar, and I was really surprised to get gift vouchers. What I don't remember now, but it was good enough to buy 3 more new branded shirts. So that was a good experience of HUL. But I had issues with some other 2-3 companies. For example, one car rental company, I booked it for some journey and I had to disrupt that, abort the journey, and they didn't refund the full amount from Pune to Mumbai, and I had to complain to CP Grams, government, when my efforts failed, and ultimately I could get back the amount. Similarly, with another company, the issue is now going on with 2 companies. Normally I don't fight, but when I feel injustice has been done, I can't keep quiet. I gave my car for servicing and I found it damaged. I said, how come it got damaged? No, aapka pehle se hi tha. So that is going on. And another one is some gift voucher I had purchased, and in COVID times, and I forgot. Now they refuse to renew it. So that is also going on. Now what do you do when you have insurance problem? So that's what I am going to talk about today. Regarding insurance complaints, before I go into that, friends, redressal of grievance is an essential part of the democratic system, and a good grievance redressal system helps to maintain a just and fair society. And I'm happy to say that government is really doing a wonderful job in this. As I said, I complained to CP Grams and I got the results. And the Indian government's call of maximum governance and minimum government, that is really the redressal of grievances is a very big factor in this call. So I would just like to show you what are the mechanisms available. CP Grams, as I was talking about, it's an online platform available 24/7
to lodge grievances to the public authorities on any subject related to service delivery. And then we have the ombudsman, so I'll be talking about the insurance ombudsman system. And then we have the Lokpal. As ombudsman, we have ombudsman not only in insurance, we have in banking, we have in electricity, we have in income tax, PFRD ombudsman, SEBI. So some of the sectors have these. And ombudsman is an independent, unbiased official, and here in our country it's free of cost. Coming to ombudsman is less hassles, no fees. Quickly the grievances get redressed. It is not consuming a lot of time. So all these benefits are there. Then Lokpal was established under the Lokpal and Lok Yuktas Act 2013 to investigate corruption against public functionaries. Then tribunals are there to take care of disputes, like Central Administrative Tribunal, Railway Claims Tribunal, Debt Recovery Tribunal, and so on. Now I would come to our insurance ombudsman grievance mechanism. Friends, in 1998, the redressal of public grievances rules was introduced in our country to provide the policyholders of insurance policies a low-cost grievance redressal forum for resolving their complaints against the insurance companies. After 2 decades, this was RPG rules were replaced by ombudsman's rules, insurance ombudsman rules 2017. Now, prior to RPG rules, if you had a complaint against insurer, you had to go to courts, which, as you know, is time consuming, cumbersome, and also expensive. So the RPG rules came, and then in 2017 the insurance ombudsman's rules came. This was amended in 2021, and not only it enlarged the scope of complaints to ombudsman from disputes earlier to deficiency in services on the part of insurers, agents, brokers, and other intermediaries. So this is the concept of ombudsman was meant to encourage settlement between 2 parties and attempt to resolve the disputes on mutually agreeable terms. The proceedings before the ombudsman are intended to be summary in nature, and it is not complicated or elaborate. So it's quite simple. And the decision of the insurance ombudsman is binding on the insurance companies after going through the process, as per rule 17.8 of our insurance ombudsman rules 2017. The object of these rules is to resolve all complaints of all personal lines of insurance, group insurance policies, policies issued to sole proprietorship, and micro enterprises on the part of insurance companies and their agents and intermediaries in cost effective and impartial manner. Friends, this is very important. The services of insurance ombudsman are available free of cost, no charges, and complainant can himself come and argue his case or represent his case. He need not depend on anybody, on some other, there are organizations which help out taking some fee, but even individually the complainant can do it himself. He need not spend money on any expenses. So no fees, no charges. This is very important. Let people know about this. Many people don't know about the ombudsman scheme, friends. Many people, including everywhere in all sectors of areas of our business, our environment. People don't know much about these. So I would like you to spread this awareness amongst your friends, your relatives, and colleagues. Okay. So now, who can approach ombudsman with a complaint? Any person who has grievance against an insurer or insurance broker may himself or through his legal heirs, nominee or assignee can make a complaint in writing to the insurance ombudsman with whose territorial jurisdiction the branch or office.
अच्छा अच्छा। तो ये कौन कंप्लेन कर सकता है अगेंस्ट द इंश्योरर या इंश्योरेंस ब्रोकर? देखिए पहले इंश्योरेंस ब्रोकर नहीं था, खाली इंश्योरेंस कंपनी था। ये जो 21 में अमेंडमेंट आया है उसमें इंटरमीडिएटरीज को जोड़ा गया और उसमें ब्रोकर्स भी आ गए हैं, तो इनके अगेंस्ट भी कंप्लेन किया जा सकता है थ्रू हिज लीगल हेयर्स ही हिमसेल्फ, और इन केस ऑफ डेथ क्लेम और समथिंग द लीगल हेयर्स कैन कम इन नॉमिनी और असाइनी। और कंप्लेंट राइटिंग में होना चाहिए, इट शुड बी इन राइटिंग। और आप जहाँ हैं वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, भले पॉलिसी बाहर के हो, चेन्नई का हो या दिल्ली का हो। इफ़ यू आर स्टेइंग इन अहमदाबाद यू कैन फाइल इट विद अस। द कंप्लेंट शुड बी मेड इन राइटिंग एज आई सेड, एंड व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल सी फ्रेंड्स, ombudsman शुड नॉट बी द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। ये पहली जगह भाग के आने का नहीं है। पहले आप कंपनी में कंप्लेंट दर्ज कीजिए, वहाँ यदि आपको जवाब नहीं मिलता है या आपको 1 महीने के अंदर रिप्लाई नहीं मिलता है, या जो रिप्लाई आपको कंपनी ने दिया आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, राइट। 1, if the company doesn't respond within a month, or if the company rejects your complaint, or if you are not satisfied with the reply. So if the complaint is pending or एक चीज है, यदि कोर्ट के किसी कोर्ट में मामला है या कंज्यूमर फोरम में मामला है तो उसको हम एंटरटेन नहीं करते हैं, राइट। तो वो हमारे पास आना नहीं चाहिए। और ये कंप्लेंट किस चीज़ का हो सकता है, किसके बारे में हो सकता है? ये देखिए, डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, जो IRDA एक्ट 1999 का स्पेसिफाइड है रेगुलेशंस में, उसके मुताबिक यदि नहीं करते हैं सेटल क्लेम्स तो वो कंप्लेंट बन सकता है। या पार्शियल या पूरा रिपुटेशन, टोटल रिपुटेशन ऑफ ए क्लेम अंडर लाइफ इंश्योरेंस, और ए क्लेम अंडर हेल्थ इंश्योरेंस, और ए क्लेम अंडर जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ये हमारे पास आ सकते हैं। और कोई डिस्प्यूट है प्रीमियम पेड का, प्रीमियम पेबल का, वो भी हमारे पास आ सकते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस एट एनी टाइम इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट और पॉलिसी कंट्रैक्ट, ये भी एक कारण बन सकता है कंप्लेन का। लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन सो फार एज द डिस्प्यूट रिलेट्स टू क्लेम, यदि पॉलिसी में कुछ मामला गड़बड़ है, यदि वो कंस्ट्रक्शन उसका ठीक नहीं है तो हमारे पास आ सकते हैं। पॉलिसी सर्विसिंग रिलेटेड ग्रीवेंसेस अगेंस्ट इंश्योरर्स एंड देयर एजेंट्स एंड इंटरमीडियरीज, राइट। issuance of life insurance policy or general insurance policy or health policy which is not in conformity with the proposal form submitted by the proposer। जो प्रपोजल फॉर्म में आपने जो क्वेश्चंस हैं जो भरे हैं और पॉलिसी कुछ और इशू किया गया है स्टेटिंग समथिंग एल्स, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। Your complaint to ombudsman can be about another one, non-issuance of insurance policy after receipt of premium in life insurance, या पॉलिसी बॉन्ड जैसे नहीं इशू हुआ है तो वो भी एक है। लास्ट वन पॉइंट, any other matter arising from non-observance or non-adherence of regulations made by IRDA, तो वो भी आप आ सकते हैं। अब आपका कंप्लेन आया हमारे पास, अब हम उसको आपको डिटेल में गोयल जी बताएंगे कैसे करना, क्या करना, वो गोयल जी विल टेक अप। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लेन, ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव कम, हियरिंग करते हैं हम, दोनों पार्टी को सुनते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को सुनते हैं, और फिर हम फैसला देते हैं। कभी कभी हम हियरिंग के बिना केस देखते हैं, हम जहां आउटराइट देखते हैं कि कंपनी ने सही नहीं किया है, तो हम कंपनी से बात करते हैं कि भाई ये क्या ऐसे है, तो आप इसको, हम मीडिएट करते हैं, वी आर दी मीडिएटर्स। सो वी टेल द कंपनी भाई इसको सॉल्व करो, ये सही नहीं है, तो कंपनी मान जाती है, पार्टी भी मान जाता है। कभी पार्शियल रेपुटेशन होता है, क्लेम, मेडिक्लेम पूरा नहीं मिला, कुछ मिला, बाकी रह गया, तो फिर मीडिएशन से भी हम उसको सॉल्व करते हैं, वो मान जाते हैं। तो वो मानने के बाद कंपनी उसे 15 दिन के अंदर क्लेम्स
उनको सेटल करना है। हम तो 10 दिन टाइम देते हैं, हम अपने ऑफिस में 10 दिन का टाइम देते हैं कि भाई आप 10 दिन में इसको ये कर लो, सेटल कर दो। यदि कंपनी नहीं मानता है, इफ द कंपनी डजंट अग्री, देन वी अरेंज द हियरिंग एंड आई गिव माई अवार्ड, वी प्रोसेस द पेपर, हम सब देखते हैं, देख करके हम अवार्ड करते हैं। तो इसको हम रिकमेंडेशन, जो मीडिएशन करके करते हैं उसको हम रिकमेंडेशन बोलते हैं। और जो नहीं मानता है कंपनी या पार्टी भी नहीं मान सकता है। कंपनी हाँ बोलेगा, पार्टी कहेगा नहीं नहीं मुझे कम मिल रहा है और मिलना चाहिए, तो हम अवार्ड इशू करते हैं। और अवार्ड जो होता है ये हम रिक्वायरमेंट मिलने के 3 महीने के अंदर तक, विद इन 3 मंथ्स हम उसको ये करना चाहिए, ठीक है। तो आई हैव टू गिव द अवार्ड विद इन 3 मंथ्स। और एक बार अवार्ड इशू होता है, पास होता है, तो इंश्योरर या ब्रोकर दे शुड कंप्लाई विद द अवार्ड विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द अवार्ड। 30 दिन के अंदर कंपनी को उसको ये करना है, कंप्लाई करना है रूल 76 के तहत। और दोस्तों कोई भी क्लेम अमाउंट 30 लाख से ज़्यादा, ये हम 30 लाख तक ही हम सॉल्व करते हैं, सेटल करते हैं। सो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट रूल्स दोस्तों, कंप्लेनेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट रेट। सपोज बहुत डिले हुआ, कंप्लेनेंट कहता मुझे आप इंटरेस्ट दिलवाइए, इंटरेस्ट चाहिए मुझे, तो वो भी हम रूल 17(7) के तहत हम दिलाते हैं। और 17(8) जो रूल है इसके, इट इज़ बाइंडिंग, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द इंश्योरेंस और इंश्योरेंस ब्रोकर, ठीक है। सो दिस इज़ इन ब्रीफ अबाउट दिस सिस्टम। द ऑफिसेस ऑफ ombudsman दोस्तों हमारे कंट्री में 17 सेंटर्स में हैं। ये आपको नाम सब शायद दिख रहे होंगे, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल वगैरह, और 17 सेंटर्स में हैं। और हमारे ऑफिस जो है 6 जून 2001 में एस्टेब्लिश हुआ है। और हमारा जो जुरिस्डिक्शन है ये पूरा गुजरात है, पूरा गुजरात राज्य है। और दीव, दमन, दादरा एंड नागर हवेली अंडर RPG रूल्स ऑफ 1998। एज आई सेड, लाइफ, हेल्थ और जनरल का हम कंप्लेंट्स डील करते हैं। दोस्तों हमारा सेंटर जो है पिछले साल 6153 6153 कंप्लेंट्स हमने डील किए हैं। ये कंट्री में वन ऑफ द, इट इज़ द हाईएस्ट, पूरे हमारे कंट्री का हाईएस्ट है, यहाँ आया है। और ग्रोथ जो है ओवर प्रीवियस ईयर, दैट इज़ अबाउट 14%। और 6153 में हम 6130 हमने सेटल किए। डिस्पोजल रेट हमारा 99.63% है। 23 वेर आउटस्टैंडिंग बिकॉज रिक्वायरमेंट्स नहीं आए थे, तो और हियरिंग नहीं कर पाए हम टाइम पे 31 मार्च के पहले, तो वो आउटस्टैंडिंग रह गए। फ्रेंड्स, कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड विद इन 30 डेज, दैट इज 79%। 30 दिन के अंदर हमने 79% कंप्लेंट्स। और सच पूछो तो मेरी तो इच्छा है कि 95% होना करने का इस बार इरादा है इस साल। और हमारी टीम भी बहुत मेहनत कर रही है, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया इसको हम जल्द से जल्द सेटल करें। और इंसेप्शन से हमारे पास 39,000 कंप्लेंट्स आई हैं। 39,000 कंप्लेंट्स वी हैव सेटल्ड सो फार, प्रोसेस सो फार सिंस द इंसेप्शन। ऑल इंडिया पिछले साल 56,468 कंप्लेंट्स आए हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो ए साइजेबल नंबर। एक ही चीज़ है दोस्तों, अवेयरनेस बढ़ाना है, इसका काफ़ी लोगों को नहीं मालूम, जैसे मैंने बताया। तो इसमें आपके भी हमें सहयोग चाहिए, आप लोग भी इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाइए। जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट कौन से सेगमेंट में आता है? तो ये रहा आपके सामने, हेल्थ का सबसे ज़्यादा आता है, मेडिक्लेम वगैरह ये सब। तो हेल्थ का 69% है, 4,260 पिछले साल का है। और जनरल का 353 कम है। लाइफ का 1540 है, मोस्टली मिस सेलिंग का होता है, एक आध रेपुटेशन के बारे में होता है। सो 25% लाइफ, 6% जनरल, हेल्थ 69%। फ्यू थिंग्स जो मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि
customer, the prospect or the person taking the insurance, वो disclose करना चाहिए, right? It's a contract of Uberama Fides, यानी utmost good faith, तो उनको भी बताना चाहिए उनका कंडीशन हेल्थ का क्या है, कंपनी को भी अपना टर्म्स एंड कंडीशंस बताना है। तो जो डिजीजेस हुए हैं, सर्जरी, इलनेस है, ये प्रपोजल फॉर्म में क्वेश्चंस जो हैं उसको ऑनेस्टली आंसर करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो बाद में कंपनी को मिल जाता है प्रूफ, तो फिर वो रिप्यूटेड होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए ये डिस्क्लोज करना पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस, सर्जरी, इलनेस, ये बहुत ज़रूरी है। इवन व्हेन यू आर पोर्टिंग इट फ्रॉम अनदर कंपनी, दूसरे कंपनी में स्विच करते हैं, तो वो कंपनी में भी ये बताना चाहिए। रेफर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी। नॉर्मली वो जो मिलता है, वो पॉलिसी शेड्यूल जो मिलता है, वो उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए भी आप मांगिए कंपनी से, और उसमें क्या कवर्ड है क्या नहीं, वो सब डिटेल्स रहता है, तो इससे आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि कभी कभी कैपिंग होता है, कैटरैक्ट है तो इतना 50,000 कैपिंग एग्जाम्पल के लिए, या कुछ है तो इसका कैपिंग ये है तो इतना, रूम रेंट लिमिट होता है, वेटिंग पीरियड होता है डिजीजेस के, देयर इज वेटिंग पीरियड फॉर सर्टेन डिजीजेस, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। डे केयर ट्रीटमेंट, उसमें क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो ये सब इसमें रहता है। तो आप एजेंट से मांगिए, ठीक है, कंपनी से भी आप उनके वेबसाइट में देख सकते हैं सब, यू विजिट देयर वेबसाइट। एंड ऑल्सो दोस्तों, हॉस्पिटल कौन सा नेटवर्क का हॉस्पिटल लिस्ट में है, कौन सा नहीं है, ब्लैक लिस्टेड है, वो सब ध्यान में रखेगा। क्योंकि नॉर्मली इफ़ इट इज़ ए शेड्यूल्ड ट्रीटमेंट, शेड्यूल्ड सर्जरी है, तो बेटर टू चेकअप और जाइए, वो हॉस्पिटल में जाइए। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग चले जाते हैं कहीं, वो ब्लैक लिस्टेड होता है, फिर इट बिकम्स एन इश्यू। अवेयरनेस अबाउट द चार्जेस चार्ज बाय द हॉस्पिटल, एंश्योर with the policy terms and conditions regarding what are payable and what are not। और सभी जो क्लेम पेपर्स हैं इसको संभाल के रखिएगा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, वो सब पेपर्स संभाल के रखिए। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू करंट ईयर, वी हैव स्टार्टेड इशूइंग अवार्ड्स डिजिटली। हम लोग इस साल से 1 अप्रैल से अवार्ड्स हम डिजिटली इशू कर रहे हैं, यानी थ्रू डिजिटल सिग्नेचर वी आर स्टार्टेड गिविंग द अवार्ड्स। और ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी है, ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं आप, और हमारा हियरिंग तो ऑनलाइन होता है। नाउ वी आर नॉट कॉलिंग पीपल टू आवर ऑफिस बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो। तो वॉट वी डू ऑनलाइन हियरिंग, दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर और द कंपनी एंड ऑल्सो फॉर अस, और फटाफट हो जाता है। सो एंड नंबर ऑफ ऑनलाइन कंप्लेंट्स, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, 22-23 का 1045। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज इन द करंट, दिस इज द टोटल कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन एवरीथिंग। इस बार अभी तक 2 महीने में, अप्रैल एंड मई में, हमने 251 कंप्लेंट्स डिस्पोज किया है। और फ्रेंड्स, 89% ऑफ द कंप्लेंट्स हैव बीन डिस्पोज विद इन 30 डेज। पिछले बार कितना था, कितना था भैया? आप क्यों बोल रहे हो, आप तो हमारे ऑफिस के हो। 79। अभी कितना हो गया? अभी गोयल जी एंड टीम कोशिश कर रहे हैं उसको, और 100% सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। अभी फटाफट हम हियरिंग ये शेड्यूल करते हैं। कंपनी कहते हैं हमको टाइम नहीं दे रहे हैं, मैंने कहा 1 हफ्ता बहुत टाइम है, और आपको तो कंप्लेंट मिल ही जाता है, तो यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस वेल इन एडवांस, बिकॉज कस्टमर शुड बी हेल्प्ड। 89% of the complaints have been disposed within 30 days. Friends, let me assure you, team Ahmedabad is committed to redress grievances speedily. हमारे यहाँ जो स्टाफ होते हैं वो ऑफिसर्स जनरल इंश्योरेंस न्यू इंडिया से आते हैं, LIC से आते हैं, वेरी डेडिकेटेड पीपल। वी हैव सम ऑन सम अदर कंट्रैक्ट में भी हैं कुछ लोग जो हेल्प करते हैं, स्पेशलिस्ट, दे आर नोन एज स्पेशलिस्ट, so they are also there. It's a very good team. We are trying our best to give the best services available, speedy services to you all, to the customers. So I think this is what I thought I will share about this.
do go and talk about it to your people, friends, colleagues and relatives, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है. आई अपील टू यू, आप लोग इसको ये करिए. नाउ आई थिंक मिस्टर गोहिल विल टेक अप द other part of it. How do you go about the other smaller things? And I think if you have question and answers, he will take. I will also supplement if required. So thank you all. Nice meeting you. Thank you. Thank you, Rao Saab, for your detailed information. It was very useful to the participants. Now I invite Goel Saab to give detailing on procedures of this insurance ombudsman, please. Honorable Insurance Ombudsman Sri Vikas Rao sir, representative of AMA Sri Giriraj Bhai Dave, ladies and gentlemen, and my colleagues from Office of Insurance Ombudsman Ahmedabad. श्री राव साहब ने इंश्योरेंस ombudsman का जो सेटअप है उसके बारे में बताया. व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्यों ये सेटअप किया और ये क्या काम कर रहा है. नाउ आई विल टेक अप द प्रोसीजरियल पार्ट, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा. तो जैसे कि बताया कि कौन कंप्लेन कर सकता है, इट इज़ कवर्ड. किसके लिए कर सकता है, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड. बट कैसे करे, इट इज़ नॉट कवर्ड. ये क्वेश्चन है ना आपके माइंड में. तो कंप्लेन ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप. जैसे ऑनलाइन बताया तो सबको होगा कि ऑनलाइन कैसे होगा. तो वी हैव ए साइट, यू कैन राइट डाउन www dot CIOINS.com. Sorry, .co.in, not .com. It is .co.in. CIOINS.co.in. ऑल इंडिया में 17 सेंटर से उनका एक हेड ऑफिस मुंबई में है, और एक ऑफिस का नाम है काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ombudsman. तो ये CIO, दैट इज काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ombudsman, एंड INS फॉर इंश्योरेंस .co.in. इस साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ रजिस्टर कंप्लेन वाला ऑप्शन आएगा, बट यू कैन रजिस्टर देयर. आपको वो पता चल गया कि कंप्लेन किसके लिए है. इट इज पॉलिसी सर्विसिंग. इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया और बाद में उसका सर्विसिंग आया इन द फॉर्म ऑफ क्लेम, या पॉलिसी सही नहीं है, या तो उसमें कुछ आप चेंजेस मांग रहे हैं, कुछ कंपनी जवाब नहीं दे रही है, जैसे पार्शियल सेटलमेंट, डिले इन सेटलमेंट, जो भी डिटेल बताया. तो पर्टिकुलरली इन वन वर्ड इट इज पॉलिसी सर्विसिंग, सर्विस आफ्टर सेल्स. उसमें आपको कंपनी से कोई भी इश्यू है या यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स, देन यू कैन अप्रोच अस. बस उसके पहले एक कंडीशन है कि एवरी कंपनी हैज ए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर. तो यू हैव टू फर्स्ट अप्रोच देयर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी. अभी सब आप साइट पे उसका मिल जाएगा. उसका मेल आईडी भी होगा, पर्टिकुलर मेल आईडी भी हो सकता है, या तो कस्टमर केयर करके भी हो सकता है. यू हैव टू फर्स्ट अप्रोच देयर. मोस्टली जो GRO होते हैं वो सीनियर ऑफिसर होते हैं, तो उनकी नीचे की ऑफिस, जैसे PSU कंपनी है, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट का, जो न्यू इंडिया, ओरिएंटल, उसमें ब्रांचेस में कुछ काम होता है, कुछ डिवीज़न ऑफिस में होता है ऑपरेशनल लेवल पे. तो वहाँ पे नॉलेज कम होता है, या तो कुछ वो लोग डिसीजन नहीं लेते हैं सही तरह से. तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर इज सिटिंग इन रीजनल ऑफिस. और प्राइवेट कंपनी में जो है वो ब्रांच, उनका जो नीचे का ऑफिस होता है और सीधा हेड ऑफिस होता है उनका, या तो बीच में कोई एक टायर होता है जनरल ऑफिस जैसा.
तो जीआरओ बैठता है हेड ऑफिस में, तो आपका पॉसिबिलिटी है कि कंप्लेन वहाँ रिजोल्यूशन हो सकता है। रिजोल्यूशन हो गया तो फिनिश, अगर नहीं हुआ तो हमारे यहाँ आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। आपने जीआरओ को आपने मेल किया तो मेल का तो प्रूफ आपके पास होता है, या डाक से भेजा तो रजिस्टर से भेजा, कुरियर से भेजा, उसका स्लिप होना चाहिए कि उसको आपने भेजा। उसने जवाब नहीं दिया तो आफ्टर 30 डेज यू कैन कॉन्टेक्ट अस, लेकिन यू हैव टू वेट टिल 30 डेज, 30 दिन का टाइम उसको देना पड़ेगा, उसके बाद हमारे यहाँ आ सकते हैं। या तो उसी ने रिप्लाई दे दिया, कंपनी जीआरओ ने रिप्लाई दे दिया एंड इट इज़ नॉट टू द सेटिस्फेक्शन टू यू कि ये सही नहीं है, अभी उसने पुराना जो मतलब प्रीवियस डिसीजन को ही अपेल्ड किया, तो यू कैन कम टू अस। तो कैसे आएंगे? एक तो ऑनलाइन मैंने बता दिया वही, दूसरा हमारे यहाँ फिजिकल सबमिट करवा सकते हैं, थ्रू कुरियर सबमिट करवा सकते हैं, थ्रू पोस्ट भी सबमिट करवा सकते हैं। अभी क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? 95% ऑफ द कंप्लेनेंट, मेरा आई हैव कंप्लीटेड टुडे 45 मंथ्स इन दिस इंस्टीट्यूशन, 3.25 साल मुझे हो गए आज। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि 95% ऑफ कंप्लेनेंट आर नोइंग अस ए हेड ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। उनको ऐसा ही है कि इंश्योरेंस कंपनी का हेड ऑफिस है, आपके पास सब कुछ है। इवन हियरिंग में भी साहब को बोलते हैं आपने हमको ये पैसा नहीं दिया, तो साहब बोलते हैं भाई तो आप कहाँ कंप्लेन किया, वो तो देखो यार, आपने इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेन नहीं किया है। हाँ, तो 95% के माइंड में यही है कि ये इंश्योरेंस कंपनी का कोई हेड ऑफिस है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वी आर सिटिंग इन ए LIC बिल्डिंग, वो भी एक इंश्योरेंस बिल्डिंग में हम बैठते हैं। हाँ, तो एक मिसकॉन्सेप्ट है ये माइंड में। वी आर नॉट इंश्योरेंस कंपनी, हमारे पास आपका क्लेम का या आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वी डोंट हैव एनी पेपर, यू हैव टू सबमिट ऑल द पेपर्स, ऑल द रिक्वायर्ड पेपर्स, और वो हमारा पूरा डिजाइन किया हुआ है क्या क्या चाहिए। तो एक तो आपका मान लो मेडिक्लेम है, तो मेडिक्लेम का जो फाइल है पूरा, उसमें वी डोंट रिक्वायर दिस पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, बिल्स। हाँ, बिल का डिस्प्यूट है तो जो पर्टिकुलर बिल का डिस्प्यूट है तो वो बिल चाहिए, लेकिन मेनली क्या चाहिए हमें? क्लेम फॉर्म चाहिए, एक स्टेटमेंट चाहिए आपने टोटल कितने का क्लेम किया है वो, डिस्चार्ज समरी चाहिए, फर्स्ट कंसल्टेशन रिपोर्ट चाहिए, जो भी क्लेम के शुरू से आखिरी तक में जो हुआ है। और जो कोई बिल का डिस्प्यूट है, जैसे बिल का भी डिस्प्यूट हो सकता है कि इसमें GST नंबर नहीं है, एक बिल में सीरियल नंबर सेम है, काफ़ी सारे जो अभी जो कंप्लेंट्स हमने डील किए उसमें जो आ रहा है, तो पर्टिकुलर कोई बिल का इश्यू है तो वो बिल चाहिए हमें, हम वो देखेंगे। इसके साथ हमें पॉलिसी का कॉपी और टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन मोस्टली आपके पास आती नहीं है, पॉलिसी होल्डर के पास, आपको मांगना है एजेंट से टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि हेल्थ में पर्टिकुलरली आई डेल्ट विथ ए लाइफ इंश्योरेंस में, आई एम फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, तो LIC में जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड प्रोडक्ट है। हेल्थ में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। बोला मेरा वो फ्रेंड था, उसका भी ये कंपनी से मेडिक्लेम का पॉलिसी था, उसको मिल गया, मेरा भी वही कंपनी से, मुझे नहीं मिला, मुझे कम मिला। तो एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट, कंपनी सेम है लेकिन प्रोडक्ट इज डिफरेंट, सब में अलग अलग है। अभी मेरे एक कलीग आए थे, हमारा जो स्टाफ का जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो 10 लाख तक का ऑफिस की तरफ से है कंसेशनल रेट पे, बाकी आप यू कैन इंक्रीज इट अप टू 75 लाख। वो बोला मेरे यहाँ 20 लाख का है और मुझे इतना काट लिया पैसा। देर इज ए डिफरेंट कैपिंग्स, रूम रेंट पे कैपिंग होता है, सर्जरी पे कैपिंग होता है, तो हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग कैपिंग होता है, वो जानना हमें जरूरी है। साहब ने जैसे बताया ना कि टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहिए, तो ये इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हमने जो प्रोडक्ट लिया है उसमें क्या क्या मिलेगा। आप पूछेंगे एजेंट को, बोलेगा हाँ सब मिलेगा, पूरा मिलेगा। और मोस्टली आर्ग्यूमेंट यही होती है, साहब हम तो 25 साल से इंश्योरेंस ले रहे हैं, एक भी क्लेम नहीं लिया, अभी तो मैंने 50,000 का ही डाला है, उसमें से 30,000 काट लिया। तो ऐसा नहीं है, आपने 25 साल से लिया है तो 25 साल से कवर आपको क्लेम आता तो देते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है 25 साल में कुछ लोग तो पूरा टोटल लगा दे, प्रीमियम इतना दिया, उसमें से अभी मैंने तो 50,000 ही डाल रहा हूँ, मैंने तो 3 लाख दिया आज तक। तो ये भी आपको समझना है, यहाँ काफ़ी इंश्योरेंस फील्ड से भी लोग बैठे हैं, तो आपको भी कस्टमर को समझाना है।
तो टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी, उसके बाद आपने जो ग्रीवेंस में लिखा वो प्रूफ चाहिए हमें, और एक सिंपल कंप्लेन फॉर्म, सिंपल फॉर्म जिसमें पॉलिसी नंबर आना चाहिए, क्लेम नंबर आना चाहिए, है तो हॉस्पिटलाइजेशन का डिटेल आना चाहिए, आपका टोटल क्लेम कितने का था, कितना मिला, कितना लेना है। क्योंकि काफ़ी मैंने 8-8 पेज का भी कंप्लेन देखा है, जैसे मेनली लाइफ इंश्योरेंस में मिस सेलिंग का होता है, पूरा डिटेल होता है, ये दिन में इतने बजे इसने फ़ोन किया, इसने ये बताया, उसने ये बताया, लास्ट में मुझे बस मेरे साथ ધોખાગાડી છેતરપિંડી થઈ છે, પણ શું જોઈએ છે એ લખ્યું નથી। दिस इज अ फॉरम, जैसे बोलते हैं ना प्रेयर, तो फॉरम को प्रेयर करना है कि मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, लास्ट में ये होना चाहिए। तो एक पेज में आ जाता है सब, नो नीड टू राइट 6, 7, 8 पेजेस, लेकिन ये इतना जो एसेंशियल चीज़ है ये आना चाहिए। हमारे पास कंप्लेन आ जाएगा, ऑनलाइन होगा या तो फिजिकल आया होगा या डाक से आया होगा, वॉक इन मतलब होगा, तो हम उसको फिर प्रोसेस करते हैं, देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आया है और सही है कि नहीं है। कई बार क्या गलती करते हैं वो भी बता दूँ। क्लेम है प्रीवियस पॉलिसी का, अभी आज 6 महीने के बाद आए तो वो आज का पॉलिसी भेज देते, तो नहीं चलेगा, रिलेवेंट पॉलिसी चाहिए, क्योंकि एवरी ईयर कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ में रिन्यू होता है, तो प्रीवियस ईयर का पॉलिसी है तो वही चाहिए। वो पॉलिसी में प्रोडक्ट में क्या था, हो सकता है ये साल प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस भी आए होते, तो रिलेवेंट पॉलिसी चाहिए। वो प्रोसेस होगा हमारे यहाँ पूरा स्क्रूटिनाइज होके, उसमें हमें कोई रिक्वायरमेंट मतलब चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, सही नहीं है तो हम मांगेंगे, अगर सही है तो विल रजिस्टर योर कंप्लेन, और रजिस्टर होने के बाद आपको एक 2 पेज का एनेक्सर 6A मिलेगा, जिसमें यू हाउ टू गिव अथॉरिटी टू द ओम्बुड्समैन फॉर मीडिएशन, और उसमें एक अंडरटेकिंग देना है कि मैंने और कोई कंज्यूमर फोरम या कोई कोर्ट में ये मैटर के लिए कोई केस किया नहीं है, क्योंकि वहाँ और कहीं पे केस रह रहा है तो हमारे यहाँ हम वी विल नॉट हियर। और कितना आप रिलीफ मांग रहे हैं, रिलीफ शॉर्ट कितना मांग रहे हैं कि इतना मांग रहा हूँ मैं, तो वो रिलीफ शॉर्ट एंड यू कैन आस्क फॉर इंटरेस्ट ओनली। ये कंज्यूमर कोर्ट नहीं है कि मेंटल हेरेसमेंट का इतना चाहिए, लीगल चार्जेस का ये मुझे मांगते हैं लोग, लेकिन इट इज़ नॉट इन आवर परव्यू। मैक्सिमम ऑनरेबल ओम्बुड्समैन कैन ग्रांट ए इंटरेस्ट, वो भी जहाँ रीजनेबल लगेगा वहाँ पे। उसके बाद वो एनेक्सर 6 से सबमिट करने के बाद हियरिंग शेड्यूल होगा, अगेन एक नोटिस आएगी आपको, और कंपनी को भी नोटिस जाएगी। जब रजिस्टर हुआ तो कंपनी को ऑलरेडी सिस्टम में नोटिस आपका ऑनलाइन चला गया, बाद में अगेन नोटिस जाएगी कि उसका ये हियरिंग हमने रखा है। व्हेन आई ज्वाइंड तो प्रीवियसली 5.25 साल तक कोई रेगुलर ओम्बुड्समैन यहाँ नहीं थे, बहुत सारी कंप्लेंट पेंडिंग थी, ऑलमोस्ट 2800 कंप्लेंट्स वेर पेंडिंग टू बी हर्ड। लेकिन हमारी टीम ने उसको, बाद में कोरोना भी आया 19-20 में, और 20-21 में काम किया हमने, 2800 से 1300 पे लाए, 21-22 में ट्रिमेंडस काम किया, और 21-22 में आपकी स्लाइड में नहीं था लेकिन मैं बता रहा हूँ, 20-21 में जितना कंप्लेन आया था उससे 4.5 गुना 1491 आया था 19-20 में, उसके सामने सॉरी 21-22 में 20-21 में 5258 कंप्लेन आया, और उसके ऊपर भी अभी लास्ट ईयर 14% ग्रोथ इज देयर। तो पूरा गुजरात में बहुत सारा अवेयरनेस हुआ है, लेकिन स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि जितना पॉलिसी बिकता है और जितने क्लेम सेटल होते हैं वो अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं है। फॉर माय पर्सनल हेल्थ इश्यूज एंड माय फैमिली मेंबर्स आई मेट 3-4 MS ऑर्थो, आई सर्जन, बड़े बड़े काफ़ी लोगों को मिला, जिसको मिला बोला सब ये क्या है, हमको तो पता ही नहीं है। जो दे आर इन मेडिकल फील्ड, मेडिक्लेम से डील करते हैं, उनको पता नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं ये अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसा रखे। तो नवंबर में हमारा बीमा लोकपाल डे होता है, उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें वाइड पब्लिसिटी भी हम देते हैं। दूरदर्शन पे भी हमारा उस दिन आया था वो न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में भी आया था। तो आज एक प्लेटफॉर्म यहाँ हमें AMA से मिला है, तो हम वी आर थैंकफुल टू द AMA, और आप सभी आए तो आपका भी मैं आभारी हूँ। फ्रेंड्स,
बाद में वो नोटिस जाएगी, उसमें आपको यू हैव टू गिव योर फोटो आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि हियरिंग आपका ही होगा। यहाँ नो अदर देन इंश्योर्ड इज अलाउड टू रिप्रेजेंट हिज केस और हर केस। मेडिक्लेम में फैमिली मेंबर होते हैं, सब इंश्योर्ड होते हैं, तो वो उसमें कोई भी कर सकता है, मदर का है, फादर का है, बेटा कर सकता है, लेकिन वो इंश्योर्ड होना चाहिए, वो पॉलिसी में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो नो अदर रिप्रेजेंटेटिव्स इज अलाउड। आपको सिर्फ अपना जो केस है उसको रिप्रेजेंट करना है, कोई आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको यू हैव टू रिप्रेजेंट कि मुझे ये पैसे ये कंडीशन के हिसाब से मिलने चाहिए। उसके बाद कंपनी उसका आर्ग्यू करेगा, साहब सुनेंगे, कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो क्लेरिफाई करेंगे, बाद में अवार्ड बनेगा। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया तो मीडिएशन का अवार्ड मिल जाएगा। और हमने लास्ट ईयर दिसंबर से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, बीमा लोक अदालत। उसका काफ़ी रिस्पांस मिला हमें। पहले हमारा मीडिएशन का 25% रेशियो था, जो अभी ये साल 45% तक गया है। तो मीडिएशन में म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं, कंपनी बोलती है मैं इतना ये नॉन मेडिकल का या ये डिडक्टेबल है वो काट के इतना देंगे, पार्टी एग्री हो जाती है, दोनों का कंसेंट हमारे पास आ जाएगा, इमीडिएटली अवार्ड इज इश्यूड और आपको 10 दिन में पैसा मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। एक मिस सेल के बारे में भी मैं बताऊंगा क्योंकि दिस इज अवेयरनेस प्रोग्राम, तो वो भी बताना जरूरी है। मैंने खुद ने एक स्टडी पेपर बनाया था 3 साल 2 साल 2.5 साल पहले। ये कैसे मिस सेल होता है, पर्टिकुलरली फॉर लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ में भी होता है लेकिन बहुत रेयर होता है, लाइफ इंश्योरेंस में बहुत होता है। और ब्रोकर्स के जो लोग होते हैं, दे आर टारगेटिंग 3 टाइप्स ऑफ द पीपल्स। एक तो जिसके जो बंदा रिटायर हुआ, जिसके अकाउंट में पैसा है कुछ 5 लाख 10 लाख आ गया, मेनली रिटायर हुआ, तो दे कॉन्टेक्ट देम। अनदर इज किसी का डेथ हो गया घर में, तो दे टारगेट मतलब कॉन्टेक्ट कहाँ से लाते पता नहीं हो, तो अभी तो सब कुछ बिकता है, तो दे टारगेट दैट पीपल ऑल्सो। इवन मेरे एक रिलेटिव में भी ऐसा हुआ, बैंक का ऑफिसर था मेरा एक कजिन, उसको भी फ़ोन आया था, उसके बेटे को भी। और बहुत सारा है। और थर्ड इज किसी को लोन चाहिए, आजकल लोन के लिए कोई लोन के लिए ट्राई करता है, तो बोला आपको ये 0% पे लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, आपको गारंटी देना पड़ेगा, ये पॉलिसी ले लो वो पॉलिसी ले लो। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे 45 मंथ्स के टेन्योर में मैंने 3-4 लोग ऐसे देखे कि एक तो सबसे पहले सूरत और राजकोट के बीच में एक बंदा था, प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 70 lakhs। पूरे फैमिली में 142 पॉलिसी बेचा इन लोगों ने, पूरे सब रिलेटिव्स, साले का साला, उसका भतीजा, उसका ये। एक रिटायर्ड मामलतदार, वो भी ये वासदा करके सूरत के बगल में है, आगे धर्मपुर वासदा, वहाँ का था, ये एक्सपायर्ड। वन फेलो वॉज प्रेसिडेंट ऑफ प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, ये लुणावाड़ा मोडासा उस तरफ का कोई था बंदा, तो उसने भी काफ़ी गवाए। और अभी फरवरी में मेरा ही खुद का एक फ्रेंड ही वॉज वर्किंग विथ BSNL और वहाँ से VRS लिया था, ये लॉस्ट 55 lakhs। और एक सोशल फंक्शन में मैं वहाँ गया था, तो उसको पता चला, उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे आपसे मिलना है, और फिर रोता था मेरे सामने कि मैंने फेसबुक में आपका फ़ोटो ही देखता रहता था, आपका डेजिग्नेशन देखा होता तो शायद मैंने पहले कांटेक्ट किया होता, कल ही मैंने 4 लाख और दिए। एक ब्रांच में, देना बैंक का ब्रांच मैनेजर सूरत में, ही लॉस्ट 50 lakhs। फ्रेंड्स, तो ऐसे जो टेम्पटेशन देते हैं ना, 12% मिलेगा, इतना ज़्यादा मिलेगा, ये लोन मुफ्त में मिलेगी, किसी को फ्लैट देंगे, फिर बोलते हैं ये, जैसे देना बैंक वाला जो था सूरत वाला, ही वॉज एट दैट टाइम ही वॉज आई थिंक 67-68 years old। उसको बोले आपका एक फादर का पॉलिसी है, वो अभी पैसा उसमें जमा हुआ कुछ 4.5 लाख रुपया, ऐसा ही बोल देगा वो मेरा कजिन था, उसको भी ऐसा ही बोला कि आपका फादर का जो पॉलिसी है, एक बजाज का पॉलिसी था 5 लाख का। तो बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा ये पॉलिसी है। मैंने बोला देख लो, घर में कुछ पड़ा है, कोई पेपर मिलता है तो देखो, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही बोलते हैं, वो ऐसे ही वो बोलते हैं कि ये पॉलिसी है, घर में कुछ मिलेगा नहीं, फिर बोलेगा ठीक है आपके पास तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तो अभी उसका सब प्रोसीजर करना पड़ेगा, उसके लिए गारंटी में आपको एक पॉलिसी लेना पड़ेगा।
अभी 67 वाला बंदा तो पॉलिसी नहीं ले सकता, तो उसके बेटे का लिया, बहू का लिया, फिर बोला इसका, ये सब आपको रिफंड मिलेगा बाद में, ऐसा बताएंगे क्या मिलेगा। हाँ, फिर आएगा कि अभी ये तो आपको एक अकाउंट नया खुलवाना पड़ेगा, इसमें से पेंशन आएगा ना, वो एक नया अकाउंट आएगा, आपके ये बैंक अकाउंट नहीं चलेगा। फिर वो बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए पैसे लेंगे, जीएसटी क्लियरेंस में लेंगे, आरबीआई करेंगे, हमारा नाम भी लेते हैं, बीमा लोकपाल। हमारे यहाँ भी एक इंसिडेंट हुआ था 3 साल पहले, हमारे यहाँ हियरिंग था एक केस का, राजकोट की कोई पार्टी का। हमारे ऑफिसर ने फ़ोन किया कि हम बीमा लोकपाल से बोल रहे हैं, आपका हियरिंग है। बोला आप गलत बोल रहे हैं। सेम टाइम पे और किसी बंदे ने उनको फ़ोन किया, मैं भी बीमा लोकपाल से बोल रहा हूँ। वो ऑफिसर आई लेडी मेरे पास, क्या करें। मैंने बोला आप उसको ऐसा बोलो, लैंडलाइन नंबर दो, अहमदाबाद का 079 ये हमारा नंबर लगाओ, फिर तो आपको ट्रस्ट होगा ना कि सच्चा बीमा लोकपाल से कौन है। तो बताते हैं, IRDA का भी वो लोग बना देते हैं, आई कार्ड, कुछ भी बन सकता है। सबसे पहले मैंने बताया ना, जो राजकोट वाला जो था प्रिंसिपल, उसको तो RBI का चेक भी इमेज भेज दिया था, 80 लाख रुपीज़ आपको मिलने वाले हैं, और लोग फंसते जा रहे हैं। एंड वी कांट सेव देम, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं रहता है। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं। तो आप जहाँ भी जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको भी लोगों को उससे अवेयर करना है कि ऐसे कोई टेम्पटेशन में आए नहीं, और ऐसे मिसचल से बचे, और गलत मतलब पॉलिसी लेने से बचे। जो भी रिटर्न वगैरह मिलना है वो पॉलिसी में लिखा हुआ होता है, और यू हैव ए पावर टू कैंसल द पॉलिसी। 15 दिन पॉलिसी रिसिप्ट होने के 15 दिन में कूलिंग ऑफ करवा सकते। आपको टर्म्स एंड कंडीशन पसंद नहीं है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है, काफ़ी एजुकेटेड लोग भी, पॉलिसी आता है, ओह आ गया रख दो, फाइल कर देते हैं। तो ये पढ़ना चाहिए, साहब ने भी बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन सब पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये बड़ा बड़ा प्रीमियम देते हैं, और बड़ा लंबा 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मान लो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसमें हम देखते नहीं है कि इसमें क्या दे रहे हैं। एक छोटी चीज़ रखते हैं। मैं मजाक में कैसे पहले बोलता हूँ कि कई लोगों को, फ्रेंड को बोलता हूँ, सब्जी नाने लेने जाते हैं, पोटैटो 20 रुपये किलो, आप एक एक पोटैटो देखते हो कि इसमें सड़ा हुआ तो नहीं है ना, और यहाँ आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, लैक्स ऑफ रुपीज़ दे रहे हैं, और वो देखते नहीं है कि इसमें 20 साल में क्या होगा, और फिर रोते हैं 20 साल में जब आता है कि मेरे को तो इतना ही मिला। तो फ्रेंड्स, ये एक अभी समाज में ये अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। तो मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी जहाँ भी जो भी फील्ड में है, आप ये मैसेज पहुँचाइए, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि अहमदाबाद में मैंने देखे है कि शाम को 5 बजे में भी, मैं जब मार्केटिंग में था तो एक एग्जांपल देता था एजेंटों को कि शाम को 5 बजे गार्डन में जाइए आप, हैं, वहाँ आपको सीनियर सिटीजन मिल जाएगा, और वहाँ से इंश्योरेंस भी मिल सकता है और एजेंट भी मिल सकता है नया, है। तो वहाँ ये सब मतलब ओपन टॉक होती है, तो वहाँ से वो माउथ टू माउथ ये काफ़ी मैसेज स्प्रेड होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिस सेलिंग फ्रेंड्स, एंड नाउ द सेशन इज फोरम इज़ ओपन। आपको कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप, रिलेटेड टू दिस आवर सिस्टम एंड एनी प्रोसीजर। आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए या सोलर। एक तो पहले साहब ने जो बताया उसमें जो लिमिटेशंस भी है ये मतलब हमारे एज पर रूल्स। तो फर्स्ट एक है पर्सनल लाइन इंश्योरेंस, इंडिविजुअल इंश्योरेंस, सोल प्रोप्राइटर और MSME, ये 3 लोग ही कर सकते हैं। आपका कोई कंपनी है तो हमारे यहाँ नहीं आ सकता है। फर्स्ट थिंग इज दैट, आपका कंपनी है तो नहीं आ सकता है, बराबर है, वो उनके लिए अलग फॉरम है। तो ये 3 जो कस्टमर है, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर और MSME का जो सर्टी आता है वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट देता है वो।
सेकंड थिंग, आपका उसमें मान लो कंपनी में भी आता है, तो आपका क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ कि आपने क्लेम सबमिट कर दिया, यू हैव ए ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट, क्लेम फॉर्म पे थप्पा होगा या आपने रजिस्टर से भेजा, वो सब प्रूफ आपको रखना है। और उसका आएगा, जो भी रिप्लाई आएगा वो राइटिंग में आएगा, इधर इन द फॉर्म ऑफ मेल या लेटर, और उसमें लिखा होगा कि आपका ये क्लेम, वी आर अनेबल टू एक्सीड योर रिक्वेस्ट या अनेबल टू एंटरटेन दिस लायबिलिटी। तो उसमें रीज़न बताना उनको ज़रूरी है, वो तो रीज़न बताएंगे। वो लेटर आप रिसीव करने के बाद यू हैव टू अप्रोच द GRO ऑफ द कंपनी, दैट इज मैंडेटरी। और उसके बाद हमारे यहाँ ये परव्यू में आता है तो हमारे यहाँ आ सकते हैं आफ्टर 30 डेज, या तो आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई ऑफ योर ग्रीवेंस। ठीक है, दैट इज अनदर इश्यू, ये बाद में आएगा। वो जो होगा वो हियरिंग के टाइम में होगा। पहले तो कंप्लेन हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो ही आपका जो इश्यू आएगा वो जब हियरिंग के टाइम में मान लो एंटरटेनेबल हो गई हमारे यहाँ कंप्लेन, तो हम सब पेपर देखेंगे। आपको अपना मतलब पक्ष देना है, आपको अपना वर्जन बताना है कि ये 40 किलोमीटर में अलाउएबल है नहीं है, आपको बताना है कि इट इज़ कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। कंपनी बताएगी नो इट इज़ नॉट कवर्ड, क्यों? तो ये दोनों का जो होगा बाद में साफ डिसीजन लेंगे, तो वो तब डिसाइड होगा। वो केस टू केस होता है, उसका कोई जनरल सॉल्यूशन मैं नहीं बता सकता हूँ, है ना। कंपनी अदर फॉरम्स है उनके, अदर ये कंज्यूमर फोरम है, कोर्ट्स है, वहाँ जाएंगे कंपनी है, तो हमारे यहाँ नहीं आ सकते। तो नहीं होगा एंटरटेन, हाँ हाँ, हमारे यहाँ नहीं होगा। 30 लाख के ज़्यादा का क्लेम, आपने क्लेम फॉर्म ही सबमिट किया है, इट इज़ 30 मोर देन 30 लाख, तो हम एंटरटेन नहीं करेंगे। सर जो आपने बताया सीनियर सिटीजन के साथ जो फ्रॉड हुआ है वो सब प्राइवेट कंपनी का फ्रॉड हुआ है, तो LIC का कोई ऐसा कोई फ्रॉड है? LIC का मिससेल नहीं है, जो भी है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का ही है, और ब्रोकर्स भी है वो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ही मोस्टली होते हैं, वो होते हैं। लेकिन 2-3 ओकेज़न, 2-3 काफ़ी नहीं, 2-3 नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे आए हैं कि जो जिसमें बैंक में सीनियर सिटीजन जाते हैं, बहुत सारा पूरा जमा किया हुआ पूंजी है उनका, और FD करवाने जाते हैं, तो दे आर गिविंग पेंशन पॉलिसीज लाइक दैट। अभी एक इंसिडेंट में बताऊँ, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी, लेकिन ये गांधी आश्रम जो अभी रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो दे गॉट ए कॉम्पेंसेशन अराउंड, कोई किसी को 4 BH का फ्लैट दिया, किसी को पैसा चाहिए तो पैसा लिया 80 लाख रुपीज़। तो एक लेडी थी, उसको मिला था पैसा, तो वो बैंक में गई कि मुझे 12 लाख रुपया FD करवाना है, तो इट वॉज कन्वर्टेड, FD है या कैसे करके पेंशन पॉलिसी दे दी। अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर को काफ़ी कोई इश्यूज़ हुए, हेल्थ इश्यूज़, और पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो बोला मुझे अभी पैसा FD तुड़वानी है, तो बोला ये तो FD नहीं है, तो इंश्योरेंस है। तो सी केम टू अस, और हमने वो पैसा दिलवाया 12 लाख। वो हमारा मतलब सीधा नहीं आता था, फिर भी हमने वो सेटल करवाया 12 लाख के है। हाँ, तो ये बैंक में होता है, बैंक में भी या FD। हाँ, एक वन बाय वन। हाँ, टू व्हीलर में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस એ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન જોવી પડે પોલિસીની. થર્ડ પાર્ટીમાં ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન જે તે પોલિસીની જે તે કંપનીની જોવી પડે. ખ્યાલ આવ્યો? તમારો આવો કોઈ કેસ હોય તો પહેલાં કંપનીમાં ટેકઅપ કરો, પછી અમારે ત્યાં આવો. દરેક પ્રોડક્ટ અલગ હોય છે, મેં પહેલાં જ કહ્યું. હું કોઈ જનરલ સોલ્યુશન ના આપી શકું, જનરલ તમને ના બતાવી શકું કે આની આ રેમેડી છે. તાવ આવે તો પેરાસિટામોલ કે ડોલો કે શું કહેવાય, આ બધું લેવાય એવું ના કહેવાય અહીંયા. એની દરેકની ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ થાય. એ અમારી પાસે આવે ત્યારે જ, જ્યારે ઘણીવાર તો પેપર્સ આવે ત્યારે પણ અમે લોકો ડિસિઝન પર એરાઈવ ઓફિસર અમારા ચેક કરીને જોવે કે આમાં આ થવું જોઈએ, પણ જ્યારે હિયરિંગમાં બીજું જ કંઈક આવે પછી, કારણ કે કંપની એનો પાર્ટ હિયરિંગ ટાઈમે રાખે છે. કંપનીને બી એનો રિપ્લાય સબમિટ કરવાનો હોય છે, એને સેલ્ફ કન્ટેન્ટ નોટ કહેવાય. એના પ્રૂફ સબમિટ કરે, એ પેપર્સ આવે ને પછી હિયરિંગમાં પણ ઘણું આવે ત્યારે ડિસિઝન ઘણીવાર ચેન્જ થઈ જાય.
એવું કોઈ સ્પેસિફિક અમારે ત્યાં ડેટા નથી હોતો, બરાબર, પણ બ્રોકર છે એ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં હોય છે. બ્રોકર મેક્સિમમ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સના જે 25% બતાવ્યો ને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનો શેર, એમાં મેક્સિમમ શેર છે બ્રોકરનો છે. 24% આઈ થિંક બ્રોકરનો હશે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં. હા, તમારો કંઈક ગવર્મેન્ટે જાહેરાત પણ આપી દીધી, પેપરમાં આપી દીધું, પણ બેંકો આ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ વેચી નહીં શકે. છતાં પણ આ લોકો ચાલુ જ રાખ્યું છે. હજુ બેંકો, બધી બેંકોએ એવું ચાલુ ના રાખી શકે. દેર ઇઝ IRDAI, એ લોકો એના કંટ્રોલર છે જે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝના, અમારા બી એ હેડ છે, બરાબર. એટલે એવી રીતે કોઈ વેચી ના શકે. એમને લાઇસન્સ મળેલું જ છે ને એ વેચી જ શકે, બરાબર. એ કોઈ ઓપિનિયન આપ્યો હતો કે ભાઈ આમાં ના કરવું જોઈએ, ખાલી બેન્કિંગ જ કરવું જોઈએ, ઓપિનિયન તો બધા જ આપી શકે, બરાબર છે. ઘણા બધા એક્સપર્ટ આપી શકે. આપણે લોકશાહીમાં જીવી રહ્યા છીએ, આપણે ઘણું બધું કહી શકીએ, બરાબર, પણ એ જે કંટ્રોલિંગ ઓથોરિટી છે એણે લાઇસન્સ આપેલું છે, એટલે દે કેન સેલ ધ ઇન્સ્યોરન્સ. હજી એવું કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન આવ્યા નથી કે બેંક ઇન્સ્યોરન્સ ના આપી શકે. યસ. ઓકે, હા, એકાઉન્ટ હોલ્ડરના. યસ યસ. હમ 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 સાહેબે કહ્યું એમણે કે તમારે બધું બતાવવું જોઈએ, બરાબર. તમે બેંકને પ્રીમિયમ કાપવાની ઓથોરિટી આપો છો કે નહીં, કે એમને એમ કાપી લે છે લોકો? નહીં નહીં, મને જવાબ આપો પહેલાં મારા સવાલનો, કે તમારો ઇન્સ્યોરન્સ લેવાય છે ત્યારે એ લોકો એમને એમ કાપી લે છે પ્રીમિયમ? તમારો ઇન્સ્યોરન્સ એ લોકો જાતે કરી લે છે કે તમે કન્સેન્ટ આપો છો પ્રીમિયમ કાપવાની? હા, તો ત્યારે યુ હેવ ટુ ઇન્સિસ્ટ ફોર ધેટ. એ પ્રપોઝલ ફોર્મ જે આવે એ તમારે ભરવું જોઈએ, એની કોપી રાખવી જોઈએ. ઓનલાઈન ભર્યું તો આપણે જોવું જોઈએ એમાં કે મારા આ ડિસીઝીસ બતાવો. સોલ્યુશન તો હવે એમની જોડે શું પ્રૂફ છે? હું બીપીની ગોળી લઉં છું, હું અહીંયા બોલું છું જાહેરમાં, તો પ્રૂફ શું છે? હું ખરીદું છું, હું બિલ બી નથી મારું ઇસ્યુ થતું. હોલસેલમાં એક મારા મિત્રને ત્યાંથી આવે છે મારી બીપીની ગોળી. દેર ઇઝ નો પ્રૂફ. એનું એવિડન્સ જોઈએ, મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટનું એવિડન્સ હોય તો જ એની ઇમ્પેક્ટ આવે. એમને એમ ખાલી કંપની કહી દે આમને બીપી હતું, ડાયાબિટીસ હતો, આમને એટેક આવ્યો હતો. એટેક આવ્યો તો પણ એક તો ટ્રીટમેન્ટ લીધી હતી, એનું પ્રૂફ છે કોઈ? બરાબર. મેડિકલ એવિડન્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. કંપની અમને આપે, કંપની અમને આપે, અથવા કન્ઝ્યુમર ફોરમમાં ગયા તો ત્યાં આપે. એના પર કેસ ડિસાઇડ થાય. પ્રૂફ જોઈએ, ખાલી કહેવાથી ના થાય. યસ. હા હા, બેનિફિટ પેએબલ, કોમ્પેન્સેશન. એ માનો કે ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ, તો ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સમાં પૈસા ક્યારે મળશે? ઓન ડેથ. ઓન ડેથ મળશે ને, નોમિનીને પૈસા મળશે. કેટલા મળશે? પોલિસીમાં લખેલા જ છે ફિક્સ. હા, બસ. તો 30 લાખની ઉપરનો સમય છોડ તો વી કેન નોટ એન્ટરટેન. બેસીને આરામ. અમારે ત્યાં આવા કેસીસ આવે છે. કંપની અમારે હિયરિંગમાં સાહેબ કહે છે કે આ પીપીએનમાં તમે રેટ કોણે ફિક્સ કર્યા? કોણ ડિસાઇડ કરે છે પીપીએન? હોસ્પિટલ એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. ક્યાં ઓપરેશનના આટલા રૂપિયા લેવા, આપવા, આટલો ચાર્જ કરવો, બરાબર છે. અને એનાથી વધારે લે તો તમારી જોડે જ્યારે તમે જાઓ ત્યારે એક તમે લખીને આપી દો છો કે હા મને વધારે આવશે તો કબૂલ મંજૂર છે. જો એવું લખીને આપી દીધું તો વી કાન્ટ ડુ એનીથિંગ. તમે એગ્રી, હા તમે એગ્રી થાવ છો, બરાબર, કે આ પીપીએન રેટ. છતાં એવા કેસીસ આવે છે અમારે ત્યાં. એવા કોઈ એવો થોડો ઘણો બી બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ મળતો હોય તો અમે પાર્ટીની ફેવરમાં ડિસિઝન આવી શકે એનું, બરાબર છે. અને કંપનીને સાહેબ કહે છે કે ભાઈ તમે હોસ્પિટલને કહો તમે એ કેમ વધારે ચાર્જ કરે છે? વેન ઇટ ઇઝ એગ્રીડ અપોન કે આટલા રૂપિયા જ લેવાના, તો પછી કેમ વધારે લો છો? અને ગોલ સાહેબ, મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસમાં એવું થાય છે કે જ્યારે તમારા ક્રિટિકલ કન્ડિશનમાં પેશન્ટ જાઓ, જે તો સાહેબ કે ચલો પહેલાં તમને ફોર્મ આપે, તમે આંખો બંધ કરીને સાઇન કરીને ઓથોરિટી આપી દો છો એમાં.
એના માટે અલગ ઓથોરિટી છે, AMC, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. કોરોનામાં તમે પેપરમાં ઘણું બધું જોયું હશે તમે. એમના બોસ છે AMC. કોણ છે? હોસ્પિટલનો ઓથોરિટી કોણ આપે છે? દુકાન, એને દુકાન શું હોસ્પિટલ ચલાવવાની લાયસન્સ કોણ આપે છે? લાયસન્સ કોણ આપે છે? ત્યાં કમ્પ્લેન કરી શકો છો. ગોયલ સાહેબ, એક મારે ક્વેશ્ચન છે. તમે કીધું કે આમાં હિયરિંગ માટે સેલ્ફ તમારે આવવું પડે ત્યાં આગળ તમારા ઓફિસમાં. ઓનલાઈન હિયરિંગ. હા, તો ઓનલાઈન. માની લો કે ફરથી પેશન્ટ બીમાર છે અને હોસ્પિટલાઇઝ થયો છે ને એ કેસમાં તમારી હિયરિંગની ડેટ છે અથવા તો આવી નહીં શકે અને એક્સિડન્ટ થયો કે બીજું કોઈ રીઝન છે એમાં, તો એને કોઈ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આવી શકે કે શું હોય છે? મેડિક્લેમ હોય તો એમાં એના ફેમિલીના જેટલા મેમ્બર હોય, મેજર મેમ્બર્સ, એમાંથી કોઈ પણ રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકે એનો કેસ. એક અનધર ઓપ્શન ઇઝ ધેર. અમે એક એની સાથે એક ડિપોઝિશનનું ફોર્મ મોકલીએ છીએ. એમને જે કંઈ પણ જણાવવું છે રાઇટિંગમાં અમને આપી શકે છે ડિપોઝિશન ફોર્મમાં, કે હું હિયરિંગ એટેન્ડ કરી શકું એમ નથી પણ મારી આ રજૂઆત છે, રાઇટિંગમાં બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં મેલ બી કરી શકે છે અમને. તો નીડ નોટ ટુ. અને એનાથી પણ વધારે અમારી જે ટીમ છે એ અમે તમારા મતલબ કમ્પ્લેનન્ટના એડવોકેટ છીએ અમે ત્યાં. અમારા જે ઓફિસર બેઠા હોય ઓલ આર એક્સપર્ટ્સ. અમારા LIC અને GICમાંથી ન્યૂ ઇન્ડિયામાંથી ઓફિસર્સ, ઇન સર્વિસ ઓફિસર્સ અમારે ત્યાં હોય છે. રિટાયર્ડ ઓફિસર્સને બી અમે કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ પર લઈએ છીએ. ઓમ્બુડ્સમેન સર જે અમારા હોય છે એ પણ રિટાયર્ડ થયા પછી 3 વર્ષનો ટેન્યોર હોય છે. એ પણ ઇન્સ્યોરન્સ ફિલ્ડમાંથી હોય છે, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ, IAS, IRS. જજ બી હોય છે, જજ બહુ ઓછા હોય છે, બરાબર. એટલે એક મતલબ આ ફિલ્ડની પૂરી જાણકારીવાળા અને પર્ટિક્યુલરલી અમારી જે મેં કીધું શું કહેવાય ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાની અલગ અલગ એક્ઝામ્સ હોય છે, લાઇસન્સિએટ, એસોસિએટ, ફેલો, એટલે બધા નોલેજેબલ માણસો હોય છે. જેવી રીતે મેં પોતે માર્કેટિંગમાં 18 વર્ષ કામ કર્યું, ક્લેમમાં મેં પોતે કામ કર્યું LICમાં, તો પોલિસી સર્વિસિંગમાં કામ કર્યું. તો એ અમારું એ એક્સપર્ટાઇઝ કહેવાય. એ ક્ષેત્રમાં એટલો એક્સપિરિયન્સ જે અમારો થયો એટલે ઘણી બધી આવી બધી મેટરમાંથી અમે લોકો પસાર થઈ ચૂક્યા હોઈએ છીએ. તો અમે બધા જ્યાં એક્સપર્ટ સ્ટાફ બેઠો છે એટલે દે વિલ મતલબ વી વિલ ટેક કેર ઓફ યુ. કમ્પ્લેનન્ટ ઘણા એવા છે, સાહેબ તમે કરી દેજો ને તમે કરશો બધું બરાબર જ હશે, અમારે હિયરિંગ નથી કરાવો, એવું કહેવાવાળા બી છે એમ. તમે બધું હવે આપી દીધું, જે લખીને આપવાનું છે આપી દીધું છે અને અમે એની વિલ ટેક કેર ઓફ યોર પાર્ટ. કંપની એનો પાર્ટ રજૂ કરે અને શું કહે છે વી આર ઇમ્પાર્શિયલ અને અમારું ડિસિઝન પણ ઇમ્પાર્શિયલ હોય છે. યસ. હા. જૂનામાં, જૂની કંપનીમાં ક્લેમ નથી. હા હા હા, બોલો બોલો આગળ. ઓકે ઓકે ઓકે. હા. પોર્ટિંગનું ફોર્મ ભર્યું હતું, પોર્ટિંગ કરાવ્યું ત્યારે પોર્ટિંગનું ફોર્મ ભરવું પડે. આપણે એક કંપનીમાંથી બીજી કંપનીમાં જઈએ ત્યારે પોર્ટિંગ જે કરીએ એનું એક ફોર્મ ભરવું પડે, ટ્રાન્સફર કહેવાય ને જે. હા, એ ફોર્મ ભરેલું હોય એમાં આપણે બતાવેલું હોય આપણી પ્રીવિયસ કોઈ આવી હિસ્ટ્રીનું પ્રૂફ ના હોય તો ક્લેમ મળી શકે. હા. હા, તો તમે GROને લખો ને, જે નવી જે કંપનીની પોલિસી છે એને લખો, તમે રેફરન્સ કરો એને, પછી અમારે ત્યાં આવજો. અમારે ત્યાં 3 વર્ષ. હા, એમાં વેઇટિંગ પીરિયડ હોય છે 48 મંથ્સ સુધીનો. વેઇટિંગ પીરિયડ પોલિસી લો એનો વેઇટિંગ પીરિયડ છે 48 મંથ્સ. અમુક ડિસીઝ 12 મંથ સુધી કવર નથી થતા, અમુક 24 મંથ્સ, એ રીતે 48 મંથ સુધી હોય છે, બરાબર. એ ડિસીઝ કવર નથી થતા. એ પોલિસી કન્ડિશનમાં પર્ટિક્યુલર દરેક પોલિસી, દરેક પ્રોડક્ટ, દરેક કંપનીની અલગ હોય છે, એમાં લખેલું હોય છે. પોર્ટેબિલિટીનું ફોર્મ ભરેલું હોવું જોઈએ અને કન્ટિન્યુએશનમાં પોલિસી તમે રિન્યૂ કરાયેલી હોવી જોઈએ, તો જૂનો કન્ટિન્યુટી બેનિફિટ મળે.
એક્સક્યુઝ મી સર, હવે એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈ લઈશું આપણે, કારણ કે 8 વાગે આપણે વાઇન્ડ અપ કરવાનું છે. એ પછી સાહેબ સાથે આપ બહાર ઊભા રહીશું તો કોરિડોરમાં આપ વાતચીત કરી શકશો એમાં. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન સર. हाँ. Yes, very good question. Not complainant is not satisfactory, right? તમે satisfactory નથી. You are free to approach any forum, any court. Advisable consumer forum. First consumer forum. 2 years. નહીં, from the decision of the cause of the action. તમારું જે રેપ્યુટેશન થયું. So there is a provision for condonation of delay also, consumer forum. They can condone the delay. But now in today's scenario, we are settling within 30 days. So तो there is a 2 years period ना, and thereafter also you can approach कि ये कंपनी ने इतना डिले किया, तो you can apply for a delay condonation, consumer forum में after 2 years. And how much time they take for disposal? नहीं, why different? हमारे we are receiving, we at Ahmedabad we are receiving highest complaint in the India. We are Without requirement, how we will register? Who said it is 20%, 22%? From where you get the data? Last year we have given awards in favor of complainant 79%. 79%. Yes, percentage is always out of 100. And where you got moreover, this data? the decision has to be based on the terms and conditions of the policy. I can't go beyond that, which consumer forum may allow, despite, going against the terms and conditions also, possible. और 2 महीना जो आप बोल रहे हैं ना, हमारा 99% कंप्लेंट इनकम्प्लीट आता है. मैंने पहले बीच में बताया कि 95% पीपल बिलीव अस एज ए हायर ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. वी डोंट हैव एनी डेटा ऑफ योर कंप्लेंट. तो हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए एक साथ दे दो. आते हैं 2%, अभी इम्प्रूव होने लगा है. जैसा ही आएगा रजिस्टर होगा. थोड़ा हमारा टाइम लेगा, अभी स्टाफ चेंजेस हुआ है. Last year the basic thing is, without requirement we don't give the file number. हाँ, फाइल नंबर वो 2 महीना लग सकता है. अब पार्टी लेट करेगा 2 महीना तो 4 बार मांगते हैं हम कंप्लेनेंट के पास. we are following up with them. We call them up and tell them भाई जल्दी उनको फोन करके भी समझाते भाई आप एक ही डॉक्यूमेंट बार बार क्यों भेजते हो. आपके पास पैम्पलेट भी दिया होगा एक बार से, नहीं है तो ले लो, उसमें लिखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. Pardon? Yeah. Friends, since March we have started another practice, though it is not as per rules, there is no provision. अभी हमारा आज कंप्लेन रजिस्टर हुआ, अहमदाबाद का पार्टी है, तो उसको जो एनेक्सर 6 से जाएगा, टपाल में 2-3 लगेगा.
हम उसको फोन कर दे, इफ इट इज कन्वीनियंट यू कम एंड साइन इट, आज ही आके दे दो, कल आके दे दो, हम रखते हैं, डिस्पेस नहीं करते, आ गया, आफ्टर 7 days हियरिंग विल बी हेल्ड विद इन 7 to 10 days, and thereafter if case is clear, all everything is clear, nothing will come addition by the company during hearing, within 10 days he will get the award. And for your information, in current year more than 90% complaint are settled within 30 days. Thank you very much. Thank you, Vikas Rao Sahab and Goel sir. It was a very good interactive session, and most of the queries have been resolved and replied also. Friends, if you have any other queries also, sir रहेंगे बाहर, तो you can have a discussion with them. Their office is in Ahmedabad only, in the Relief Road. You can visit their office also and get some more clarity related to claims, procedures and other thing. So thank you everybody for attending this evening talk, and especially thanks to Vikas Rao Sahab for your valuable time and guidance also. Thank you Goel Sahab also. Here we are ending this session, and all these important talks are available on Facebook Live on Ahmedabad Management Association Facebook page. It is also telecasted live on YouTube channel. So if you have missed something, or if you want to listen something, want to have some more clarity, please visit our Facebook page as well as YouTube channel also. Thank you very much.